Hello students. Today I am going to start emerging trends in our society. So this is a chapter. In this chapter we'll be going to study introduction to emerging trends, artificial intelligence, that is AI, and big data, Internet of Things, and cloud computing, grid computing, and blockchains. So what is the emerging trends? As I have already discussed with you. So computers have been around for quite some time now, or you can say for a long time. I mean, for last uh, you know uh, 30 to 35 years, it is in our life. So new technologies and initiatives emerge with each passing day in order to understand the existing technologies and have a better view of the developments around us. We must keep an eye on the emerging trends. Many new technologies are introduced almost every day. Some of these do not succeed and fade away over time. Some of these new technologies prosper and persist over time, gaining attention from users. Emerging trends are the state of the art technologies which gain popularity and set of new trend among users. In this chapter, we will learn about some emerging trends that will make a huge impact in the future on digital economy and interaction in digital societies. So first point which we'll discuss here, that is artificial intelligence. So as you know, what is artificial intelligence, and you have seen around you. So whatever you do, every move of yours is recorded, and whenever you come across such kind of scene, the same recorded messages, some recorded pictures, some recorded videos uh, come across. So, have you ever wondered how maps in your smartphones are able to guide you to take the fastest route to your destination by analyzing real-time data such as traffic congestion? Like, अगर मैं कहूँ आपसे कि अगर आप स्मार्टफोन से जा रहे हैं और आप स्मार्टफोन आपके पास है और आप ट्रैवल कर रहे हैं, मान लीजिए शहर में ही करते हैं सपोज, तो आप ये देखेंगे कि अगर आप स्मार्टफोन और उसके साथ में नेविगेशन स्टार्ट कर लेते हैं अपने स्मार्टफोन का, तो आप ये देखेंगे कि योर जीपीएस सिस्टम गेट्स एक्टिवेटेड एंड द स्मार्टफोन गेट्स नेविगेटिंग एंड गिव्स यू द डायरेक्शन एंड इट ऑल्सो टेल्स यू कि आगे थोड़ा 2 किलोमीटर जाने के बाद हो सकता है कि आपको ट्रैफिक कंजेशन मिले, तो आपको जो है एक डाइवर्जन लेना है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ ये इस इतना मतलब एक आप आपको कैसे पता चल जाता है, या आपके मोबाइल को कैसे पता चल जाता है कि आगे जो है बहुत ज़्यादा भीड़ है तो आपको वहाँ से डाइवर्जन लेना है। सो दिस इज हाउ एआई वर्क्स in that scene. I mean, in that scenario, AI works. So what happens when you travel on uploading a photo on social networking site? Has it ever happened that your friends in the photographs were recognized and tagged automatically? यानी फोटो देखा गया और वो उसको टैग कर दिया गया, ये ऑटोमेटिकली कैसे हो गया? These are some examples of application of artificial intelligence. The intelligent digital personal assistant like Siri, Google Now, Cortana, Alexa, all are powered by AI. You need, like if you use Alexa, Alexa को आप कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो उसको करना शुरू कर देती है। तो ये कैसे उसके पास कैसे ये कोडिंग आ गई, या उसे कैसे पता है कि मान लो आपने कहा एलेक्सा डिम द लाइट, तो उसने लाइट को डिम कर दिया। एलेक्सा
स्विच ऑफ द वॉशिंग मशीन, तो पता चला कि जो वॉशिंग मशीन है उसने चलना बंद कर दिया। एलेक्सा स्विच ऑन द लाइट, उसने लाइट ऑन कर दिया। तो ये सारी चीज़ें यानी आपके इंस्ट्रक्शंस पे ये ऑटोमेटिकली कैसे हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ये जो इम्पैक्ट है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। ओके, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस endeavors to stimulate or simulate the natural intelligence of human beings into machines, thus making them behave intelligently. You know, an intelligent machine is supposed to imitate some of the cognitive functions of human, like learning, decision making, and problem solving, in order to make machines perform tasks with minimum human intervention. They are programmed to create knowledge base and make decision based on it. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि जो कुछ भी आप करते हैं वो सारी की सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती रहती हैं और आउटकम्स टू मेक न्यू डिसीजंस। एंड व्हाट इज मशीन लर्निंग? So machine learning is another part, and this is associated to artificial intelligence. Machine learning is a subsystem of artificial intelligence wherein computers have the ability to learn from data using statistical techniques without being explicitly programmed by human beings. It comprises algorithms, means machine learning का एम ही ये है कि एक जो जो भी डेटा उसके पास अवेलेबल होगा या मशीन के लिए जो डेटा आप लेकर के आ रहे हैं उस डेटा को यूज़ करके और सर्टेन एल्गोरिथम्स को यूज़ करके वो कुछ प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। These algorithms, called models, are first trained and tested using training data and testing data, respectively. After successive training, once these models are able to give results to an acceptable level of accuracy, they are used to make predictions about new and unknown data. आप ये मान लीजिए कि मशीन लर्निंग का सीधा मतलब ये है कि अगर आपने सिस्टम को एल्गोरिथम दिया, उसका फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए और डेटा दिए, तो उस बेस्ड ऑन दैट इट गिव्स यू द प्रेडिक्शंस, एंड दैट प्रेडिक्शन डेफिनेटली favor you. The next is natural language processing, that is NLP, the predictive typing feature of सर्च इंजन। लाइक सर्च इंजन में क्या है, आप कोई भी वर्ड आप सर्च इंजन को देते हो, सर्च इंजन क्या करता है कि उस किस पर्टिकुलर वर्ड को लेकर के एक प्रेडिक्शन दे देता है, या उसका जो जो आप सर्च कर रहे हैं वो रिजल्ट दे देता है। या कोई भी आप अगर जो फ्यूचर जैसी कोई बात आप पूछते हैं या उसको ऐसा कीवर्ड देते हैं तो वो उसको आसानी से आपको उसका रिजल्ट दे सकता है। So while typing keywords and the spell checking features are example of natural language processing. For example, you are typing the sentence thanks A, जैसे ही आपने कहा थैंक्स ए, लॉट अपने आप लगा देगा। तो दिस इज व्हाट, दिस इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। थैंक यू सो मच, होप यू आर, जैसे आपने कहा होप यू आर, आपने देखा होगा while टाइपिंग एन ईमेल, तो वट एवर यू आर गोइंग टू टाइप ऑन ईमेल, तो एक वर्ड लिखने के बाद इट ऑटोमेटिकली गिव्स यू द हिंट। सो व्हाट्स दैट, दिस इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। वो ऑटोमेटिकली जो है सजेस्ट कर देता है कि हो सकता है इसके आगे हो, मे बी आप उसको डिलीट कर सकते हैं, पर वो एक सजेशन आपको जरूर देता है। तो दिस इज व्हाट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। होप यू अंडरस्टैंड। Computers using human spoken language such as Hindi, English. In fact, it is possible to search the web. यानी क्या होता है कि अगर मैं इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको दूं, तो अगर गूगल डॉक्स पर जाएं तो वहां लिखा है वॉइस टू टाइप। जैसे ही आप इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो उसमें से जो उसका जो फीचर है वो आपसे कहेगा कि आप बोलना शुरू करिए, आप जिस भाषा में भी उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं वो स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर देता है, वॉइस टू टाइप। सो इन फैक्ट इट इज
possible to search the web or operate or control our devices using our voice. All this has been possible by NLP, means natural language processing system. ठीक है. So okay, an NLP system can perform text to speech, जैसा कि मैंने आपको बताया, and speech to text, यानी जो आपने बोला उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देना. तो इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है, आप चाहो तो गूगल डॉक्स में इस चीज़ को करके देख सकते हो. और अब तो ये है कि MS वर्ड वगैरह में भी, बिकॉज हर एक सिस्टम में ये जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होने लगी है. कोई भी वर्ड आप इनकरेक्ट टाइप करते हैं तो तुरंत उसको सजेशन देना शुरू कर देता है कि इट कुड बी दिस, इट कुड बी दिस, और इट गिव्स और इट प्रेजेंट्स द वर्ड अंडरलाइंड. इसका मतलब है कि अब अगर उसने अंडरलाइन किया है, इट मीन्स देयर इज सम सजेशंस. So if there is some suggestions, it means you have to right click it and see the suggestions, and if you find this appropriate, then select it. So this way your natural language processing works. Machine translation is a rapidly emerging field where machines are able to translate text from one language to another. अगर आप Google Translate की बात करो तो whatever you see on the screen, if you मतलब ये है कि गूगल ट्रांसलेट एक गूगल क्रोम एक्सटेंशन भी है, जिसको आप चाहें तो अपने क्रोम में इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. तो व्हेनेवर यू सी एनी टेक्स्ट ऑन योर स्क्रीन एंड इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, यू कैन convert that text into your native language so that you can understand the concept whichever is there in your screen. Okay, so a machine translation is a rapidly emerging field where machines are able to translate text from one language to another with fair amount of correctness. तो जो कुछ भी वो ट्रांसलेट करेगा वो परफेक्ट होगा. Another emerging application here is automated customer service, where a computer software can interact with the customers to serve their queries or complaints. तो आपने ये तो आप जानते हैं कि जैसे ही आप कस्टमर केयर में फ़ोन करते हो तो अगर वहाँ पर कोई नहीं है तो अपने आप मैसेज आना शुरू कर देता है कि हमारे कस्टमर केयर ऑफिसर्स किसी और कॉल पे बिजी हैं. और तब तक वो अपना जो है कोई ना कोई छोटा मोटा स्पीच देते रहते हैं कि ये अगर है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं. तब तक जो है जो ऑफिसर है वो फ्री हो जाता है. नाउ नेक्स्ट इज इमर्सिव एक्सपीरियंस. इमर्सिव एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि अगर आप देखें with the three-dimensional videography, the joy of watching movies in theaters has reached to the new level. Video games are also being developed to provide immersive experiences to the player. Immersive experiences allow us to visualize, feel, and react by this stimulating our senses. It enhances our interaction and involvement, making them more realistic and engaging immersive experiences. अब एक चीज़ और भी है, there are so many apps where immersive experiences जो है वो incorporate किया गया है. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई इंग्लिश का लिटरेचर है, PDF फाइल है, उस PDF फाइल को अगर आप चाहें तो जैसे वेकलेट जो एडटेक टूल है उसके अंदर आप स्टोर करते हैं और वहाँ पर जो है आप ये देखेंगे कि ऑटोमेटिकली उसके अंदर इमर्सिव टूल जो है अटैच हो जाता है. इमर्सिव टूल वहाँ पर क्या होगा कि जो आपका PDF फाइल है वो जैसे इमर्सिव टूल को क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछे किस लैंग्वेज में इसको बोलना है. तो जैसे ही इमर्सिव टूल को स्टार्ट करोगे और लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे, वो जो भी डेटा आपको दिया हुआ है वो उसको कन्वर्ट कर देगा, जिस जिस लैंग्वेज में चाहते हैं उसी में कन्वर्ट कर देगा, और उसके साथ साथ वो पूरा जो पैराग्राफ है, पूरा जो पेज है उसको डिक्टेट भी करेगा. नाउ व्हाट इज़ वर्चुअल रियलिटी, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपसे कि जब भी आज की डेट में वर्चुअल रियलिटी है या ऑगमेंटेड रियलिटीज़ हैं, ये बहुत इफ़ेक्टिव हैं.
यानी आज ट्रेंड में चल रहे हैं कि वर्चुअलिटी बेसिकली होती क्या है। वर्चुअलिटी में एक डिवाइस जो है लाइक स्पेक्टिकल्स जैसे जो है आप लगा लेते हैं आंखों पर, और वो उस डिवाइस के अंदर कोई भी प्रोग्राम जो है आप लोड कर सकते हैं। और लोड करने के बाद जब आप उसको आंखों पे लगाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप जो है उसी जो जो प्रोग्राम आपने लोड किया है कि यू आर द पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम। सपोज करिए कि आपने आपने जो है एफिल टावर के का प्रोग्राम जो है अपलोड कर लिया, उसमें डाल लिया, तो आप ये नोटिस करेंगे कि आप जो हैं उसके अंदर, क्योंकि आपने आंखों में लगा लिया, तो आप अपने आप को ऐसा महसूस करेंगे कि आप एफिल टावर के आसपास हैं, लोग घूम रहे हैं, आप भी घूम रहे हैं, इधर घूमते हैं उधर घूम, सब हर चीज़ आपको ऐसे, मतलब वर्चुअल रियलिटी जो होती है वो रियल कहीं और है, लेकिन वो है तो नहीं आपके पास। तो वर्चुअली यानी आप ये सोच रहे हैं कि आप जो है रियल में हैं, बट इट इज़ नॉट रियल, दिस इज कॉल्ड वर्चुअल रियलिटी। So everything that we experience in our reality is perceived through our senses. Yeah, this is a device. You see, this is a device. इस डिवाइस को अगर आप, डिवाइस के अंदर आप कोई सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम है जो वीडियो है वो आप इसको अपलोड कर सकते हैं, और फिर जब आप उसको आंखों पे लगा लेंगे तो आपको वही महसूस होगा कि आप वास्तव में उसके साथ ही हैं। तो इस चीज़ को हम वर्चुअल रियलिटी बोलते हैं। सो एवरीथिंग दैट वी एक्सपीरियंस इन आवर रियलिटी इज परसीव्ड थ्रू आवर सेंसेस। From this came the idea that if we can present our scenes with made up or non real information, our perception of reality would also alter in response to that. मतलब सीधा सा है कि अगर हम ये सेंस कर सकते हैं कि ये रियल है या अनरियल है, पर जो परसेप्शन आपने लिया है, लेकिन वो वास्तव में देखा जाए तो वो आपके आसपास नहीं है, बट क्योंकि ये रियलिटी में नहीं है, लेकिन जब आप इस डिवाइस को लगा लेते हैं तो डिवाइस को लगाने के बाद फिर आप ये महसूस करते हैं कि यार ये तो, मैं तो इसके आसपास ही हूँ, ये तो ये बिल्कुल बिल्कुल सामने है मेरे, लोग घूम रहे हैं और ये चीज़ मेरे आसपास दिखाई दे रही है। सो वर्चुअलिटी इज a three-dimensional computer generated situation that simulates the real world। इस चीज को आप थोड़ा सा देखिएगा, simulates the real world। The user can interact with and explore the environment by getting immersed in it while interacting with the objects and other actions of the user. At present, it is achieved with the help of VR headsets. So this is called VR headset. In order to make the experience of VR more realistic, it promotes other sensory information like sound, smell, motion। यानी आपको मतलब जो वर्चुअल रियलिटी है उसको और भी रियल करने के लिए तो आप जो भी सेंस करते हैं रियल लाइफ में वो सारे सेंसेस देने की कोशिश की जाती है। आप स्मेल कर सकते हैं तो आपको स्मेल दी जाएगी। आप ये देखते हैं कि अब बारिश हो रही है तो आपको यह महसूस होगा कि आप बारिश में आपके ऊपर जो है पानी आ रहा है, बारिश हो रही है। तो इन ऑर्डर टू मेक एक्सपीरियंस वी आर मोर रियलिस्टिक, it promotes other sensory information like sound, smell, motion, temperature, etc. It is a completely new field and has found its application in gaming, military training, medical procedures, entertainment, social science, psychology, engineering, and other areas where simulation is needed for a better understanding and learning। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हमें वर्चुअलिटी के बारे में आना चाहिए और पता होना चाहिए। और मैं जानता हूँ कि जैसे ही आप मेट्रोज लाइक दिल्ली मुंबई वगैरह आप जाएंगे तो आपको वर्चुअल, ये जो वर्चुअल रियलिटी के जो हेडसेट है बड़ा आसानी से देखने को मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट इज ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी का मतलब ये हो गया कि जो रियल में है उस रियलिटी पर एक जो है आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देना या लिंक कर देना।
एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा ऑगमेंटेड रियलिटी के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे मैं ही आपको शो कर सकता हूँ कि जैसे एक आप लोग जो है ना अक्सर ये लगा लेते हैं कि आपका फोटो है, उसके ऊपर आपने कुछ कान लगा लिए है, उसके आपके मुंह से एक टंग निकल आई है, और आपके हेड पर जो है लंबे लंबे सींग निकल आए हैं। तो इट इज व्हाट, दिस इज ऑगमेंटेड रियलिटी। So this is the superimposition of computer generated conceptual information over the existing physical surroundings। यानी वास्तव में जो फिजिकल जो चीज़ें हैं और उस ऑब्जेक्ट को हम ऐसे इमेजिन करते हैं कि मतलब उस ऑब्जेक्ट को जो रियल नहीं है, लेकिन हम उसको रियल बनाने की कोशिश करते हैं। तो उस ऑब्जेक्ट को हम जो जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है या इमेजिनरी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हम रियल में बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल डोरेमोन वगैरह जो जैसे ये चीज़ें हैं, मान लो डोरेमोन आपकी टेबल पे जंप कर रहा है, या आपने क्या किया कि एक टेबल है, टेबल के ऊपर आपने एक हाथी खड़ा कर दिया, और हाथी ऐसा लग रहा है कि रियल में हाथी जो है टेबल पर है, और दिस इज व्हाट, ऑगमेंटेड रियलिटी। तो ये सारी चीज़ें ऑगमेंटेड रियलिटी में आती हैं। सो इस चीज़ के बारे में आपको देना पड़ेगा। नाउ अब आती है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स का मतलब क्या है कि अगर कंप्यूटर साइंस है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग है एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इनका कॉम्बिनेशन, देन अगर आप कुछ मतलब कोडिंग एल्गोरिथम्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनको कंबाइन करके जो है आप एक नया कंसेप्ट बनाते हैं जिसका मतलब होता है रोबोट। रोबोट क्या है, बेसिकली उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और पूरी टेक्निक उसमें इस्तेमाल की गई है, मतलब इंजीनियरिंग का पूरा कंसेप्ट उसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। तो वो जो है एक इंसान की तरह से काम कर सकता है। लेकिन इंसान और रोबोट में मतलब ये इंसान को रिप्लेस करने के लिए नहीं, इंसान के साथ काम करने के लिए है। बिकॉज इंसान काम करते करते थक सकता है, जैसे काम को करके थक सकता है, और जो है उससे क्या होगा, उसके आउटपुट में इश्यूज आएंगे। यानी जो आउटपुट जब उसने डे स्टार्ट किया था, जो आउटपुट तब दिया था, वो 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद वो उसकी जो एक्यूरेसी है वो धीरे धीरे डिमिनिश होती रहेगी, और डिमिनिश होती चली जाएगी, और बाद में पता चलेगा कि वो उसको रेस्ट चाहिए, फिर वो चला जाता है रेस्ट करने के लिए। बट रोबोट में ये होता है कि वंस एन असाइनमेंट इज गिवन टू रोबोट, सो सिंस बिगनिंग एंड टिल द एंड इट वर्क्स विद द सेम स्पीड एंड विद सेम इंटेलिजेंस। मतलब इंसान की तरह से वो इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करता है, सिंस दिस इज द ऑब्जेक्ट जो कि द कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस, कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनका जो कॉम्बिनेशन है, इससे आपने रोबोट बनाया, और जो ये सिस्टम है, दिस इज व्हाट रोबोटिक्स इज। So a robot is basically a machine capable of carrying out one or more tasks automatically with accuracy and precision. Unlike other machines, a robot is programmable, which means it can follow the instructions given through the computer programs. Robots are robots were initially conceptualized for doing repetitive industrial tasks. जैसे कि मैंने बोल दिया आपको कि आप इंसान को काम दोगे, वो करेगा तो सही, लेकिन धीरे धीरे उसकी जो एफिशिएंसी है वो डाउन होती चली जाएगी। लेकिन रोबोट की एफिशिएंसी डाउन नहीं होती, वो जिस स्पीड से स्टार्ट किया था उसी स्पीड से वो आगे भी करता चला जाएगा। सो दिस इज रोबोटिक्स। सो हियर सम एग्जांपल्स। नासा नासाज मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर जो मशीन है, मिशन इज रोबोटिक। यानी जो भी ऐसे एक्सपीडिशंस हैं, वो सारे के सारे रोबोट्स पे ही या रोबोटिक्स पे ही डिपेंड करते हैं। तो ये आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए कि सोफिया इज ए ह्यूमनॉइड, यानी एक रोबोट है, लेकिन वो ह्यूमन की तरह से बात करती है, उसके अंदर वही इंटेलिजेंस है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंट्रीज ने उसको जो है सिटीजनशिप भी दे रखी है। तो ये क्या है, सोफिया इज ह्यूमनॉइड दैट uses
artificial intelligence, visual data processing, facial recognition, and also imitates human gestures and facial expressions as हम देख चुके हैं अपने कई सारे टीवी प्रोग्राम्स में हमने सोफिया का इंटरव्यू वगैरह भी देखा है. ए ड्रोन इज एन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, यानी ड्रोन है उसके अंदर कोई नहीं बैठता, फिर भी वो उसको आप डायरेक्शन देते हैं और ड्रोन अपना काम करता हुआ आगे चलता है. किसी कुछ भी जैसे डिलीवर करना है तो सामान ले जाकर के डिलीवर भी कर देगा. तो दिस वे ड्रोन वर्क्स. ओके, सो आई थिंक दिस इज enough for today. So we'll be discussing the rest of the things in our next period or next day. Till then, goodbye.